Just start the recording. Look carefully. Find the force exerted by 5 kg block on the floor. Okay. Achha, the lift is going up with what acceleration? 5 meters per second. Can I say this is the floor of the lift? This is 5 kg. And this is the 2 kg. Can you tell me? दोनों को एक पूरा सिस्टम पकड़ता है, दोनों को एक सिस्टम पकड़ता है। तो एक सिस्टम अगर पकड़ेंगे हम लोग तो कोई बता सकता है कितना टोटल केजी हो जाएगा? ये 7. 7 kg. I'm taking this as one mass, 7 kg. Are you getting it? How much weight will he apply downward? mg 70. 70 Newton. Can I say यहाँ से एक normal reaction आएगा? बोलो. Yeah. Yes. And can I say this whole system is going up with what acceleration? 5 5. meters per second. बोलो yes or no. Can I say F net is ma? If I apply F net is ma. F net is ma मतलब bigger force minus smaller force is m into a. ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? ऊपर. तो दोनों फोर्स में से बड़ा कौन रहेगा? n बड़ा रहेगा कि 70 बड़ा रहेगा? n Can I say F net क्या बनेगा? n minus 70 should be m. m 7 है into a is 5. बोलो. yes. अरे इजी है यार. हेलो. हाँ सर. तो n कितना हो जाएगा? 105 Newton. 100. Can I say ये n जो जमीन दे रहा है एक्चुअली n 7 kg को नहीं दे रहा है. n कितने को दे रहा है? जमीन को 5 kg. 5 kg को दे रहा है बेटा. यहाँ जो फ्लोर है वो n किसको दे रहा है? 5 को दे रहा है ना, बिकॉज उसके एक्चुअल कांटेक्ट में कौन है? 5. 5. 5. Can I say अगर ये n दे रहा है तो ये भी तो n इक्वल एंड ऑपोजिट फ्लोर को देगा? Yes. Yes or no? For every action there is an equal and opposite Reaction. reaction. Question क्या पूछा है? Find the force exerted by the 5 kg block on the floor. That is n. And what is n का value? 105. 105 Newton. Did you get my point? How to do? Yeah, Yes. sir. मतलब पूरे सिस्टम को मैंने एक ब्लॉक पकड़ा, फिर लगाया F net is ma, उससे मेरे को n मिला. जितना n जमीन लगा रहे 5 पर उतना 5 लगाएगा जमीन पर. Are you getting my point? Hello. Yeah, sir. And then you get the result of this answer. उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वरना नहीं आएगा. So, Yes. so now, for example, what if they asked us for the 2 kg block? That will come later on. That is a little more complicated. That will come later on. If they ask you for 2 kg, so if I apply free body diagram of 2 kg only, can you tell me where is the weight acting? Downward. How much? 20. Can I say इन दोनों के बीच में normal reaction let it be n1. तो normal reaction का result क्या होता है? It is towards the body. बराबर क्या? Yeah. Yes. This is applied by whom on whom? बोलो n1 is applied by whom on whom? By whom on whom? By the 5 kg By on the 2 5 kg. On the 2 kg. Can I say he is going up with an acceleration? The whole system is going up with an acceleration of how much, beta? 5 5 meters per meter second. per second square. Now, can I apply F net is ma? That is बड़ो force minus छोटो force is ma. Where is 2 kg Yes. going ऊपर? ऊपर मतलब ऊपर. दोनों में से बड़ा कौन रहेगा? N1. So can I say n1 नीचे ऊपर N. minus 20 नीचे 20 is is equal to equal to- m इसका 2 है into a. Yes or no? Yeah. तो n1 कितना रहेगा? 20 plus 10 that is 30. 30 Newton. 30. तो can I say ये इस पे 30 लगा रहा है तो ये इस ये पे भी भी 30 30 देगा. लगाएगा? Yes or no? Yeah.
Yes, sir. If he is applying 30 on him, then this guy will also apply 30 on him. Yes or no? Yeah. Yes, sir. Good question, Chaos. Very good. Got it now? Yes, sir. The concept is the same only. Got it? Yeah, sir. प्रैक्टिस से आ जाएगा मुझे पहला समय यार. Got it. बोलो. Yes, sir. Question number 2 Got पर it, आता है. yeah. Question number 2. अच्छा याद है एक सिस्टम याद है when the lift going up, how much is the normal reaction? mg plus a. Yes. When the lift comes down, how much is the normal reaction? Minus A. Minus Minus A. When the lift is freely falling, how much is the normal reaction? M. 0. R. अरे freely falling lift बाबा. Yes, sir. And when the lift is standing, how much is the normal reaction? mg. MG. G. मालूम है ना सबको? अगर ये लिफ्ट है और पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, कितना वजन है उसका? mg है. 50 कैन आई से जमीन से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर और ये सपोज ऊपर जा रहा है ए से, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा इसका? mg MG plus A. Plus A. यू नीड टू नो. अगर ये लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो MG minus G minus. व्हेन द लिफ्ट इज स्टैंडिंग, तो n क्या रहेगा? MG. G. mg. एंड व्हेन द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तो n क्या रहेगा? 0. मतलब एक्सेलरेशन एट दैट मोमेंट इज g and going downward. यस और नो? Yes. ये चारों केसेस आपको याद करने हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. बस बहुत सारा टाइम में ये फिट हो जाता है, मतलब डायरेक्टली फिट हो जाता है. अ बॉय ऑफ 50 kg स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म. सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म. अ बॉय ऑफ 50 kg इज स्टैंडिंग ओवर हियर. मतलब इसका मास कितना रहेगा? m कितना है? 50. 50 50. kg है, बराबर. इसका मास है 50 kg. In a lift going down with a constant speed of 3. v कितना है? 3 meter per second. Can I say acceleration 0 है because ये constant है ना बेटा? बोलो. Yes. हाँ, बट अभी फिलहाल इट इज गोइंग विद 3. आगे देखो आगे क्या हो रहा है. उसको एक्सेलरेशन 0 नहीं लिखता. फिर क्या बोल रहा है? If the lift is brought to rest by a constant deceleration covering a distance of, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा? 9 meter. और कह रहा है यहाँ पर लिफ्ट रेस्ट पर आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 0. हुआ रिटार्डेशन हुआ क्या एक्सेलरेशन हुआ? Retardation. Retardation. रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर बनेगा? Downward. Vertically downwards. डाउनवर्ड कैसे बनेगा भाई? डाउनवर्ड कैसे Upward बनेगा? बनेगा to Velocity stop से. it. To stop it ना? Upward बनेगा. Yes or no? Yeah, It sir. should be opposite to the direction of the velocity. बराबर क्या? Yeah. Yes. Are you getting my point? Are you understanding? बोलो. अरे भाई Yes, चीज sir. नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर बनेगा तो ही तो रिटार्डेशन होगा. बोलो भाई. Can I say this is your u, this is your v और s दिया है क्या? कौन सा इक्वेशन लगेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन a ढूंढने के लिए? V square is equal to U square plus 2S. plus 2as. You know it, v square is equal to u square plus 2as. v तो 0 है, u square कितना है? 3 square है plus 2a. So we कितना can't है use इसका? stopping distance. You can use that also. Stopping distance is u square by 2a. बराबर है क्या? हाँ. ये कितना हो गया? 9 हो गया. ये 2 into 9 18 हो गया. a तो a का वैल्यू कितना आया? 0.5. Minus 0.5. हाँ, that is understood only. माइनस मतलब रिटार्डेशन है. बराबर है क्या? Yeah. हेलो? लिख लो Yes. यार. माइनस 0.5. This is minus 0.5. माइनस मतलब रिटार्डेशन. इट इज अ रिटार्डेशन. बट एक मिनट, ये थोड़ी पूछा है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 1D. बराबर क्या? Yeah. बट ये थोड़ी पूछा है. पूछा क्या है?
What does the scale read in that period? Scale का reading हमेशा होता है normal reaction. Scale का reading हमेशा क्या पूछता है? Normal Scale reading आप वजन करते हो ना, वजन के कांटे पर. तो वजन का कांटा आपका mg थोड़ी बताता है, आपका क्या बताता है? Normal reaction. मैंने पढ़ा चुका हूँ theory में. Yes or no? हाँ, अच्छा, which category it is coming into? First, second, third, fourth. First. First. First category. Acceleration ऊपर है. ए भाई, हेलो. yes, Yes or no? Lift going down की बात नहीं है. Acceleration ऊपर है. तो n is mg plus a. Yes or no? Yes. yeah, कुछ लोग n is mg minus a लगाएंगे. Wrong है. That time acceleration should be downward. Normal reaction is mg plus a. m कितना है इसका? 50. g is 10 plus a कितना मिला मेरे को? 0.5. Yes or no? Are you there with me? Yes or no? yeah, Hello. sir. कितना होता है ये? मल्टीप्लाई करेंगे 15 into 10 500. 500 से ऊपर थोड़ा रहेगा ना. That is 515. Yes or no? Yes. This is very good questions, man. मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है. Yes or no? So it is 1d plus with some. One सर D plus two. 0.5 तो माइनस में है ना, What is minus? जो 10 plus 0.5 I have written ना, so here it should be minus. अरे भाई, this minus sign indicates retardation, not that minus sign. Retardation means where is it going? Where is the acceleration directed? Yes, yes. Onwards. Upwards. Acceleration over here is directed upward. Upward का concept किधर है? First, second, third, fourth. First. First. First, सर 15 to 10.5 तो 5 to 5 होता है ना? 5. 525. Multiply करो. 5 to 5. हाँ, तो ये 9.8 लिया फिर उसने. अरे भाई ठीक है, इस 9.8 लिया. कोई आंसर मैच कर रहा है क्या दूसरा? नहीं, इतना क्यों टेंशन लेते हो बाबा? हेलो, व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग? जो आंसर नजदीक है उसको मार्क कर दो. दे हैव गिवन यू ऑप्शंस ना. यस और नो? Yes sir. yeah, भाई नन ऑफ दीज अगर होता तो मैं सोचता चारों आंसर में से कोई मैच कर रहा है क्या दूसरा? नजदीक वाला आंसर तो 9.8 लेंगे तो फिर 5 and 5 डायरेक्ट आता है. 5 and 5 डायरेक्ट आ जाएगा. यस, 10.3 Three. 10.3 हो जाएगा. दैट इज अंडरस्टूड हियर. Concentrate, attack on the concept. आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है. तो केयरफुली, look carefully, बेटा, pay attention. An elevator and its lows having a mass of 800 kg. मतलब एलिवेटर और उसका जो वजन है कितना है टोटल? 800. If the elevator originally moving downward at 10 meter per second is brought to rest, वही तो सम है. The distance of 25 meter, the tension. अच्छा, always remember tension in the rope and the normal reaction have the same relation. Lift going up क्या था? Normal reaction कितना रहेगा? mg plus. G plus Tension will also be mg plus. लिफ्ट का जो रस्सी होता है ना, रस्सी होता है कि नहीं, मोटा वाला? Yeah. Normal reaction and tension play the same relation. चलो ये सम कर लेते हैं, देखते हैं. एक एलिवेटर है, कितना मास है इसका? 800. से नीचे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड. ये रस्सी है ना उसका, बराबर है क्या? कितने डिस्टेंस कवर किया उसने बिफोर कमिंग टू रेस्ट? Can you tell me how much will we? How will I find A? Can I use stopping distance? yeah, डायरेक्ट. S कितना है? 25. U स्क्वायर कितना है? 100. Are you getting it? ये 50 हो गया. 52 मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है? रिटार्डेशन हो रहा है ना. Upwards. So where is the acceleration directed?
अपवर्ड बोलो भाई, इसलिए तो रुक रहा है भाई. Are you getting it? Which Yes. category of normal reaction will it fall into? First, second, third, fourth? First. 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 तो First. टेंशन क्या रहेगा? Mg plus. M कितना है? 800 है. G is 10, 9.8 ले लो या 10 प्लस ये कितना है? 2 है. Yes or no? 9600 आएगा देखो डायरेक्ट. Yes. दो यार. Tension and normal reaction play the same relation. Okay. Are you understanding? Yes, sir. Fourth question. ध्यान दो. Three blocks of mass M1, M2, M3 are connected by a massless string as shown in a frictionless table. They are pulled by T3. अच्छा इधर देखो. There are three masses. M1, M2, and M3. ठीक है भाई? चलो डायग्राम देखो. डायग्राम दिया हुआ है क्या? हाँ सर ऐसा ही करना है. This is M1. This is M2 and this is M3. इधर टेंशन कितना है? T1, T2 and कौन सी पुल कर रहे हैं हम लोग? कौन से रस्सी से पुल कर रहे हैं? कितना टेंशन है इसमें? T3 बराबर है क्या? कितना दिया है? 40 न्यूटन. Are you getting it? Yes, sir. This is 10 kg. This is 6 kg and this is 4 kg. Are you satisfied with this thing? ये clear है? ये मास से खींचा जाए. The tension will be. कौन सा टेंशन चाहिए मेरे को? T2. T2 चाहिए. अच्छा ध्यान देना. I require tension T2. Now listen to me. T2 is this. Which one? Okay, look carefully now how to do this thing. Yeah. Can I say tension का direction क्या होता है? Point of contact से away. Point of contact away. इस tension का नाम क्या दिया? T1. T1. Point of contact से away. Point of contact से away. T2. बराबर है? Yeah. Yeah. स्टेप नंबर 1 ऐसे टाइप के सम्स में सबसे पहला स्टेप 1 सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालो. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. अच्छा नेट पुलिंग फोर्स एक्सटर्नली कौन खींच रहा है इसको? T3. T3 खींच रहा है. T3. T2 तो बैलेंस है देखो अंदर ही है. जोड़ी Yeah. बना रहा है कैंसिल कर देगा. T1 भी जोड़ी बना रहा है कैंसिल कर देगा. T3 का कोई जोड़ी नहीं है. पेयरिंग नहीं है. यस और नो? Yes. T3 is unbalanced force ना बेटा. अरे टेल मी मैन. It should be unbalanced externally. Yes or no? Yes, sir. कितना कितना खींच रहा है वो? 40. Newton. 40. What is the total mass of the system? 20. कितना होगा ये? 2 meter per second square. Can I say the whole system is going आगे with an acceleration of what? 2 meter per second square. Are you getting it? Yeah. एक ट्रेन के डब्बे की तरह है ना. एक डब्बा दूसरे डब्बा तीसरा डब्बा तीनों एक्सेलरेशन सेम से चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes. Yes. Because over here the string is inextensible. बताया था ना मैंने last time. If Yeah. the string is inextensible, the acceleration of the whole system is going to remain the same. Yes or no? बताया था मैंने? Yeah.
तो स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं है, स्ट्रिंग टाइट है। टाइट है मतलब क्या, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा ना, यस और नो? Yeah. पूरे सिस्टम का Yeah. एक्सेलरेशन एक ही है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दूसरे सबका, स्टेप 2। I'll apply free body diagram। एक्चुअली मैं लंबा सम कर रहा हूँ, एक्चुअली है एकदम इजी, बट आई वांट टू कॉम्प्लिकेट थोड़ा ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो M1 कितना केजी है बेटा? 10 10 केजी। इसको खींच रहा कौन है? T1 T1 खींच रहा, बराबर क्या? और ये A से ऐसे जा रहा है, सही है? हेलो बोलो भाई। yeah sir कैन आई अप्लाई F net is MA? नेट फोर्स इज MA। नेट फोर्स कितना रहेगा इसका? इसका फोर्स कितना है जो खींच रहा है इसको? T1. T1। M कितना है इसका? 10। और A कितना ढूंढा मैंने? 2। Two. कैन आई से टेंशन जो खींच रहा है दैट इज 20 न्यूटन। बोलो। yeah मतलब यहां से लगाया मैंने 40, बट ट्रांसफर कितना हुआ यहाँ पे? Please. 20 न्यूटन। यस और नो? Yeah. अच्छा, ये एक बात हो गई इसकी। अब बात करेंगे हम लोग बीच वाले मास की। बीच वाला मास कौन सा है? M2. तो यहाँ से रस्सी जो अटैच्ड है उसका टेंशन रहेगा T2, यहाँ पर रस्सी जो अटैच्ड है उसका टेंशन रहेगा T1, और ये इधर जा रहा है, बराबर क्या? हाँ. चलो लगाओ F net is MA। बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज MA। सिंस ये T2 सिस्टम राइट minus की तरफ जा T1. रहा है, who has to be bigger? Can I say T2 minus T1 has to be M, इसका रेस्पेक्टिव 6 है और एक्सेलरेशन 2 है। बोलो भाई। yeah तो टेंशन 2 कितना हो गया? T1 का वैल्यू कितना उठाओ यहाँ से? 20 प्लस 12 दैट इज 32, बराबर क्या? हेलो Yeah. yes sir Yeah. कैन आई से इसका वैल्यू कितना मिला? T2. आंसर 32 है, बराबर क्या? चलो और एक बात करते हैं, हम लोग M3 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। M3 बनाता हूँ यहाँ से। M3 को खींच रहा कौन है? 40। बोलो yes हाँ. बेटा, यहाँ पे कौन है? T2. 32 और यहाँ पे एक्सेलरेशन है। कैन आई से F net is MA, बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज MA। बोलो बड़ो कौन है? 40 माइनस T2 इज M कितना है इसका खुद का? 4 इंटू 2, हाँ. तो T2 कितना रहेगा? 32. 40 minus 8 that is 32। Are you getting it? Yeah. yes तो ये सब चीज नहीं करना है आपको, सिर्फ ये डायरेक्ट अप्लाई करना है, आपको एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। मतलब यू हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लास्ट मास। ये वाले मास को काट लेना है सिस्टम से। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? yes sir yeah sir आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इसका मतलब लगाया 40, फिर बन गया 32, फिर बन गया 20। आर यू गेटिंग इट? yes sir Yeah. मैं एक ट्रिक बताऊं, और एक मस्त ट्रिक है, अगर समझ सकते हो तो समझो। T2 जो मास, T2 जो रस्सी है ना, T2 वाला रस्सी दिख रहा है आपको, ये वाला? हाँ. बाबा हेलो। yes हाँ sir T2 वाला रस्सी जो है, T2 वाला रस्सी है, वो उसके पीछे कितने मासेस को पुल कर रहा है? दो 2 मासेस। कितने मास है? टोटल मास कितना है? वैल्यू कितना है 16 टोटल? kg 16. ये 6 और ये 10। इसको कंसिडर मत करो, इसको एक ही सिस्टम पकड़ लो, बराबर क्या? हाँ. yes कहना इसे T2 वाला रस्सी जो है वो ये पूरे को कितने को खींच रहा है बेटा? 16 kg विद कितना एक्सेलरेशन? 2 meter per second square 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहना इसे F net is MA। ये सब नहीं करना है तो F net is MA लगाओ सीधा। F net कितना खींचने का? T2। M कितना खींच रहा है? 16। एक्सेलरेशन कितना? ये मिल गया भाई। 32 yes sir गेटिंग इट? ये उसका ट्रिक है, अगर आपको आता रहे तो। क्लियर है क्या? Yeah, we have done this during the theory part. वी हैव डन दिस इन द थियरी। यस, डिड यू अंडरस्टैंड? Yeah. yes sir ये चीज तो अलग अलग करो,
या साथ में करो, वो आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। अच्छा T1 वाला रस्सी कितने को खींच रहा है? 10 kg. 1 एक mass को ही को खींच रहा है, तो एम है। गेटिंग इट? हाँ। T3 वाला रस्सी कितने को खींच रहा है? सबको, एक। सबको खींच रहा है ना। हाँ हाँ T3 वाला रस्सी 6 और 10 और 20 को खींच रहा है, तो कहना इसे 20 into 2 40 हुआ कि नहीं? yes sir. Are you getting my concept? Yes, sir. ये है यार ना क्या। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। Trying to do most of the questions so that you all can understand. चलो मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है क्या? इधर यही दिया है क्या? ये मिस्टेक है कुछ? I don't know. Question. Laws of motion. No, this is ये तो ये वाला सम है यार, ये रॉन्ग है। डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। I think this 15 diagram was kg for question 4. या टाइपिस्ट कुछ भी करता है ना। 12 kg है। ये कितना है? 15 kg। It's 15 kg। कितने से पुल कर रहे? F से। कितना एंगल पर? 30 पर। बराबर क्या? ये टेंशन T2 है और ये टेंशन T1 है। मुझे पूछ रहा है रेशियो ऑफ T1 एंड T2। सही है क्या? अरे मजा आने वाला है, मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कि F का कौन सा कंपोनेंट खींचने में हेल्प करेगा? F sin theta. F Cos theta, sorry. F cos theta, cos theta. F कितना होता है? अरे यार बोलो ना, cos 30 √3/2 होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yeah. ठीक। अच्छा नमन जलाल, T1 कितने मासेस को खींचने में हेल्प कर रहा है? T1 दो मासेस को खींचने में हेल्प कर रहा है। और T2 कितने मासेस को खींचने को हेल्प कर रहा है? एक ही. बराबर क्या? yes अच्छा सबसे पहला स्टेप हमेशा रहेगा एक्सेलरेशन निकालने का। कुछ भी हो जाए आप एक्सेलरेशन तो भूलेंगे नहीं। एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन total mass टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना खींच रहा है? अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कितना खींच रहा है? कौन खींच रहा है? √3/2 है। √3/2 है. भाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 3 + 12 + 15 बराबर क्या? हेलो मैन टेल मी यार। Yes. हाँ हाँ ये 15 15 30 और 2 60 हो गया। सही है क्या? ये एक्सेलरेशन मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही छोड़ दो उसको। यस और नो? या या तो ये सब भी नहीं करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो इसके बिना भी निकाल सकते हैं। स्वयं ऑन कर। T1 कितने को खींचने को हेल्प कर रहा है? 15 kg। उसको कितना पकड़ो? 15 बराबर क्या? या कैन आई अप्लाई F net इज MA? यस F net कितना है? T1 M कितना है? 15 into A। यस और नो? yes हेलो। अच्छा T2 कितने को खींचने को हेल्प कर रहा है? एक 3 kg। इधर लगाओ T2 इज MA। 3 है अरे भाई बोलो यार, क्या दोनों को डिवाइड मार दूं? 5:2 हो गया आंसर। क्या होता है? 15/3 कितना हो गया? 5:1। क्या नहीं से एक्सेलरेशन निकालने का जरूरत भी नहीं था, yes हाँ. मतलब एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो रहा है। हेलो। Yeah. मतलब ये स्टेप निकालना नहीं है, बट जनरली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा हर स्टेज पे एक्सेलरेशन निकाल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस सब में नहीं जरूरत है। गेटिंग इट? हेलो आर यू गेटिंग इट? इजी नहीं लग रहा Yes, यार? है yes बहुत इजी है। खाली F net Yes, sir. इज MA लगाओ यार। अभी कितना भी Very कॉम्प्लिकेटेड easy. है, क्या प्रॉब्लम है? F net इज MA, F net इज MA, F net इज MA। पीछे के सम में क्या किया था? F net इज 0, अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट।
बुक का लेवल देखते हैं, ये ऐसे ऐसे बढ़ता है एकदम स्लोली स्लोली, एंड के सम्स एकदम हार्ड, एकदम स्लोली स्लोली बढ़ता है ताकि आपको भी आसानी हो जाए. नाउ we'll come to the sixth question. ध्यान से मेरी बात सुनना. I don't want to run because इसके बाद में फ्रिक्शन है, फिर खत्म हो गया चैप्टर. खत्म हो गया चैप्टर मतलब सिनॉप्सिस खत्म, फिर सॉल्विंग चालू. गेटिंग ना? बस Yes. हो जाएगा. 4-5 लेक्चर बनता है एंड देन डाउट सॉल्विंग करेंगे. चैप्टर इज ओवर. Then after your vacation we can start with our work energy power offline में. बराबर है ना? So, अभी और मजा आएगा. Yes. so can you go to the previous slide for a second? हाँ भाई. Yes, sir. Thank you. ध्यान से बात सुनो. Two blocks of mass 2 kg and 1 kg are in contact with each other on a frictionless table. एक टेबल है जिसके ऊपर 2 kg रखा है और 1 kg रखा है. और they are in contact with when a horizontal force of 3 Newton is applied on the block of mass 2 kg. The value of force constant between the two forces. Force constant मतलब इन दोनों के बीच में normal reaction मांगता है. ओके, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स मांगता है. बराबर है क्या? Yeah. अरे ये इसको धक्का मारेगा तो ये इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? Yes. ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Find acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन का स्टेप क्या है? फॉर्मूला क्या है 3/3. एक्सेलरेशन का? Net pulling. नहीं रुको. नेट पुशिंग फोर्स. Pushing. अरे पुल थोड़ी हो रहा है यार. Yeah. फोर्स इज अ पुश और अ पुल. नहीं, यस और नो? Yeah. अपॉन टोटल मास. इधर पुशिंग फोर्स लगेगा. रस्सी होगा तो क्या करेगी? Pulling, फोर्स. pulling तो force. रस्सी को पुश थोड़ी कर सकते हैं, तो स्लैक हो जाएगा. यस और नो? कितना है नेट पुशिंग फोर्स? 3 न्यूटन. टोटल मास कितना है? 3. 3. तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द राइट. बोलो भाई. Yeah. मतलब आप 3 लगा रहे हो 2 पर और नॉर्मल रिएक्शन धक्का मार रहा है किसको? 1 को. अरे बोलो भाई, यस और नो? Yeah. अच्छा, मैं स्टेप 2 लगा रहा हूँ, बट स्टेप 2 मैं लंबे मेथड से करूंगा, एंड में शॉर्टकट बताऊंगा. यस और नो? तो हम लोग एफबीडी बनाते हैं 2 kg का. 2 kg को यहां से धक्का मार रहा है 3 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी. यस और नो? अरे Yeah. भाई बोलो. एंड ये एक्सेलरेशन से जा रहा है इधर. कैन आई अप्लाई एफ नेट इज एम ए? बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज एम ए. बड़ो कौन है? इन दोनों में से बड़ो कौन है? किस तरफ जा रहा है वो? तो Right. डोमिनेंट कौन है? A is बड़ा. कौन डोमिनेंट है? नहीं, A is dominant. I mean that A is not a force. Who is हाँ, dominant? sorry, 3. 3 minus n. इस m कितना है इसका? 2 है. और A कितना मिला मेरे को? 1 मिला. यस और नो? तो n का वैल्यू कितना आया? 5. 5 आ रहा है क्या? 1. Sorry. 1 न्यूटन. यस और नो? कभी भी याद रखने का, n जो रहेगा वो ये 3 से कम रहेगा, बिकॉज बढ़ रहा है ना फोर्सेस. अरे पीछे भी तो हमने कैसे किया था? 40 से 32 हुआ. 32 से कितना हो गया? 22 हो गया, 12 हो गया, जो भी हो गया. यस और नो? जितने से आप धक्का मारेंगे उसका फोर्स कम होता जाएगा, बिकॉज वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है. अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yeah. Yes, sir. ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका था. यस और नो? अभी दूसरे की बात करते हैं. 1 kg का ब्लॉक बनाते हैं. देखा 1 kg जा रहा है इधर है, उसको धक्का कौन मार रहा है? n मार रहा है. n का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी. यस और नो? तो एफ नेट इज एम. एफ नेट कौन है इधर? एफ नेट सिर्फ n है, बाकी और को है नहीं. m कितना है इसका? 1 है. और a का वैल्यू भी कितना? 1 है. तो n का वैल्यू कितना आया? 1 न्यूटन. बोलो. Yes. तो आप चाहे ये करो या ये करो, दोनों में से एक करो, आंसर सेम आने वाला है. यस और नो? ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको देखना है n किसको धक्का मार रहा है. पीछे हमने क्या देखा था कि कौन सा टेंशन कौन सी वैल्यू को खींच रहा है. यहाँ पे n किसको धक्का मार रहा है? अरे यार n किसको धक्का मार रहा है? 1 kg को. 1 kg को. तो n will become equal to m into a.
Yes. n इज m, किसको धक्का मार रहा है 1 को, a कितना है 1 है, तो n का वैल्यू 1 न्यूटन आया, बोलो भाई यस और नो। Yeah. हाँ sir. ये ट्रिक है, पीछे हमको देखना है उसके पीछे कितना है, इधर देखना है इसके आगे कितना है। नॉर्मल रिएक्शन में देखना था, अरे फ्रिक, टेंशन में क्या देखने का था, उसके पीछे कितना है। देखो ना T1 के लिए क्या निकाला मैंने, इसके पीछे कितना है, यस और नो। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन में क्या देखने का है, उसके आगे. आगे कितना? आगे कितना है, यस और नो। Yeah. हाँ sir. This will all come by practice, all come by practice. Okay, I'm just telling you my experience so that you can get it faster. थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेगा ना तो आपको खुद को दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे ही सॉल्व करना था, ये तो ऐसे करना था। विथ हार्ड वर्क, थोड़ा सी स्मार्ट वर्क भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके ऊपर से लोड कम हो जाएगा। Are you understanding my point? Hello. Yeah. Question Yes. number 7 पर आते हैं। Question number 7. I'm trying to do most of the questions so that you all can get the understanding part. 3 blocks are placed on rest on a smooth inclined surface. Smooth मतलब इधर friction विक्शन का नामो निशान नहीं है, बराबर है क्या? Yeah. With a force acting on M1 parallel to inclined plane. Find the force constant between M2 and M3. Force constant between M2 and M3 मतलब ये normal reaction निकाल देगा, बराबर है क्या? Yes. M1 is parallel to inclined plane. Find the contact force between M1 and M2. Three blocks are placed at rest. Rest word है क्या उधर? Yeah. Check. ये रेस्ट वर्ड निकाल दो, 3 blocks बस, placed on a smooth, बस इधर, मतलब पूरा सब मतलब चेंज हो जाएगा। Got it now? हेलो, अब ध्यान दो, बात सुनो मेरी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Acceleration. Acceleration is, now before doing acceleration please pay attention. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंक्लाइन प्लेन होता है थीटा का, ये m होता है। Where is mg acting? Downward. Remember this is there, ये बताया था मैंने Yeah. कि नहीं? Which force is acting along the inclined plane downward? mg sin theta. अरे वाह, आता है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये ऐसे होता है, ये थीटा, ये होता है mg, बराबर है क्या? ये भी थीटा ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम, तो ये क्या हो गया mg cos थीटा, बराबर क्या? Yes. और ये क्या होता है? mg sin. ये तो याद ही रखना है, इसके बिना काम नहीं होगा, बराबर है क्या? Yeah. अच्छा, कैन आई कंसिडर दिस टू बी वन ब्लॉक? बराबर। स्टेप 1, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? Net pulling force. Net pushing force force upon total upon total mass. Can you know that? I know that this mass, what is the mass of the whole system? M1 plus M2 plus M3. ये जो नीचे रहेगा वो रहेगा m1 plus m2 plus m3 into g sin थीटा। अरे mg sin थीटा ना भाई। Yes. हाँ.
Yeah. और ये फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका फोर्स ऊपर लग रहा है, बराबर। हाँ ये एक्सेलरेट भी ऊपर का है। कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट पुशिंग फोर्स, ऊपर एफ लगा रहे हैं, नीचे mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना रहेगा? नेट नेट F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, बोलो, Yes, sir. अपॉन टोटल मास कितना है? M1 plus M2 plus M. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेप 1 तो यही रहेगा हमेशा। अरे बोलो ना मैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? Yes, sir. तो मेरे को चाहिए क्या? फाइंड द फोर्स बिटवीन m2 एंड m3। m2 एंड m3 के बीच में फोर्स ये है, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है क्या? Yeah. अच्छा, ये जो Yeah. नॉर्मल रिएक्शन है वो किसको धक्का मार रहा है ऊपर? M3. M3 को कौन से ब्लॉक को? M3 m3 को। M3 को अरे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ये, किसको धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ? 3 को m3 को। कैन आई से दिस नॉर्मल रिएक्शन m3 बनाओ सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। कैन आई से ही इज गोइंग अप विद a बिकॉज़ पूरे का एक्सेलरेशन सेम है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आया ना, वही मांगता है। कैन आई अप्लाई एफ नेट इज ma? हेलो, Yes. एफ नेट कितना है? m कौन सा है? m3 M. इंटू a यहाँ से उठा लूँ चलेगा क्या? यस और नो? Yes. तो इट विल बी f minus m1 plus m2 plus m3 into g sin theta upon M1 plus M2 plus M. are you getting my point? Yeah. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर है ना एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम? कुछ मिस किया क्या मैंने एक चीज मिस कर दी है। क्या नहीं से इसका वेट भी तो नीचे आएगा, कितना आएगा? यस और नो? Yeah. तो एफ नेट क्या बना? N minus N minus M3 G sin theta. Yes, because if I apply F net is ma over here, it is not only n, there is another mass also. So n minus m3 g sin theta is m3 into a is f minus m1 plus m2 plus m3 into g sin theta upon m1 plus m2 plus m3. Are you understanding? Okay. अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। मेरी बात सुनना है ध्यान से, पे अटेंशन टू इट। ना चाहिए क्या हो जाएगा? n minus m3 g sin theta इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? m1 m3 plus m2 m3 plus m3 m3, that is m3 square. Are you getting it? बोलो। ये मल्टीप्लिकेशन है ना, सॉरी इट इज मल्टीप्लिकेशन, आई एम नॉट टेकिंग एलसीएम बाबा, हेलो, मल्टीप्लिकेशन है बीच में। आर यू गेटिंग इट? अरे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन वो नहीं है। हाँ हेलो, ये सब्ट्रैक्शन है ना, बताओ, ये सब्ट्रैक्शन है। ये हो जाएगा m3 इंटू ये है ना f माइनस दिस
ओके, तो m3 into f minus m1 g sin theta minus m2 g sin theta minus m3 g sin theta upon m1 plus m2 plus m3 बराबर क्या? हाँ. हेलो, इज करेक्ट राइट? m3 into f minus 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 minus. Okay, now fine. अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं. तो ये लिखा जाएगा m1 plus m2 plus m3 into n minus m3 g sin theta is equal to, ये m3 मल्टीप्लाई करो हर एक के साथ में, बिकॉज ये m3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में. कैसा लिखा जाएगा ये? m3f minus m1 m3 g sin theta minus m2 m3 g sin theta minus m3 square g sin theta. अब इसको ये साइड पे भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n into m1 plus m2 plus m3 minus m1 m3 g sin theta minus m2 m3 g sin theta minus m3 square g sin theta is equal to m3f minus m1 m3 g sin theta minus m2 m3 g sin theta minus m3 square g sin theta. आप देख सकते हो दोनों साइड से ये उड़ जाए. ये देखो, ये टर्म्स ये साइड पे और ये साइड पे सेम है, उड़ जाएगी. तो n क्या बचा? खाली ये साइड पे बचा m3f और यहाँ पर बचा m1 plus m2 plus m3 which I can take down. m3f upon m1 plus m2 plus m3. m3f sorry, m3f upon m1f नहीं है, m3f upon, so we'll go in none of these ना. m3f upon m1 plus m2 plus m3. now ये सब सॉल्व करने का मकसद नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जब भी इंक्लाइन प्लेन आए तो रिजल्ट हमको इस तरीके से याद रखना है कि हमको समझ में आ जाए. कौन से नॉर्मल रिएक्शन कौन से मास को धक्का मार रहा है? M3. m3. तो कैन आई से नॉर्मल रिएक्शन विल बी मास जिसको धक्का मार रहा है इनटू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. आर यू देयर विद मी? Yes. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया सॉल्व करने के बाद. कौन से मास को धक्का मार रहा है बाबा बोलो? M3. इनटू टोटल फोर्स कितना है जो लगा रहे हैं नीचे से? F अपॉन टोटल मास कितना है? M1 plus M2 plus. Are you understanding my point? So for inclined plane, we remember this formula. Yeah, you have to remember this formula. अच्छा, अगर इधर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, इसको नाम देते हैं n डैश. काशिका will tell me n डैश किसको धक्का मार रही है बेटा? n डैश M2 और M3 को. दोनों को. तो कैन आई से इट विल बी m2 plus m3 Yeah. into total force हाँ. M1 upon plus total M2. mass. बोलो भाई, yes or no? Yes. मिल गया आंसर. क्या था प्रॉब्लम? Got it So or the not? answer will be B, right? B कहाँ है? B है. M1F नहीं है ना बेटा? हमारे में हमारी बुक M3 में है. M3F है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यूज. दैट इज आंसर के बारे में आप टेंशन मत लो यार, ये M3F. बट आपको ट्रिक समझा क्या? Yes. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन विल बी मास जिसको धक्का मारा जा रहा है, मास जिसको पुश किया जा रहा है इनटू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. गेटिंग इट? Sir,
यस इधर g sin थीटा वो सबको कंसिडरेशन में नहीं ले, और अगर हम डायरेक्टली वैसे करें कि मतलब a is equal to f upon m1 plus m2 plus m3 और फिर f equals to m लगाए तो भी सेम ही आंसर आता है. वही सेम है. दैट कंसेप्ट में थीटा को आपने 0 पकड़ लिया दिमाग में. हाँ, बिकॉज फोर्स और वो सेम ही डायरेक्शन है ना. यस यस बट वी हैव डेवलप्ड अ शॉर्टकट ना नाउ. गेटिंग इट ना. या वो भी करो, ऐसे करो, वैसे करो. देखो आपको सोचना है बस, आप अपने मेथड डेवलप करो, आंसर वही टाइप से सेम आ जाना चाहिए. तो मास जिसको धक्का मारा जा रहा है इनटू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये याद रखना शॉर्टकट. 1 साल बाद आप भूल जाएंगे तो किधर ना किधर नोट करो. अभी बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल बाद भूल जाएंगे, फिर देन यू ओपन द बुक, देन यू सी द डेरिवेशन, ये तो हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो. इट हैपेंस. यू हैव टू मेक योर सेल्फ नोट्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बना लो यार, ये तो इजी है. मास जिसको धक्का मारा जा रहा है फोर्स अपॉन टोटल मास, हो गया. चलो. सर यस अगर यही सेम फोर्स M3 पे अप्लाई करते तो भी सेम रहता फॉर्मूला. किस पे अप्लाई करते हैं? M3 से. अरे बेटा M3 पे अप्लाई करेंगे तो M2 और M3 तो M1 और M2 तो नीचे गिर जाएगा. तीनों को लगाना पड़ेगा ना फोर्स. तो ओके. खाली M3 पे लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक नीचे गिर जाएंगे उसके वजन की वजह से. लगाना तो तीनों को है. यस और नो? या ओके ठीक है. विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8. लिसन टू मी. Okay. Look over here. In an arrangement shown in the figure, the mass m will ascend upward with an acceleration of what? ध्यान दो. Pay attention. Can I say this is nothing but like a Atwood's? मैंने आपको Atwood's machine सिखाया है. Atwood's machine. नहीं. Did I do it last time? No, Did I do it last? No. अभी इधर ध्यान दो. इसको पहले बाद में देखते हैं. इसका मास 3/2 m है. ओके पहले Atwood's machine की बात करते हैं. इधर ध्यान देना. Atwood's machine, I had done it in my theory, but I am repeating it again. ये Atwood's machine होता है. इधर कितना होता है? M1. इधर क्या होता है? M2. Acceleration will be net pulling force upon total mass. Net pulling force कितना है? यहाँ पर कौन खींच रहा है? M1G. यहाँ पर कौन खींच रहा है नीचे? M2G. Suppose M1 is greater than M2. M1 भारी है. Can I say ये नीचे जाएगा ना एक्सेलरेशन से. और स्ट्रिंग इज मासलेस तो ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. बराबर है क्या? यस. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. कैन आई से इसको इमेजिन करो, स्ट्रेट कर दो. तो यहां से खींचने वाला कौन है? M1G. यहां से खींचने वाला कौन है? नेट फोर्स कितना बना? M1G minus M1G minus M2G अपॉन टोटल मास. इसका शॉर्टकट मैंने बनाया डिफरेंस इन मास अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू G. बराबर. मैंने सिखाया था वो टाइम पे भी. डिफरेंस इन मास अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू G. रट्टा मारने का Atwood's मशीन बहुत काम की चीज है. डिफरेंस इन मास, भारी मास माइनस हल्का मास अपॉन टोटल मास इनटू G. बोलो. Yes, sir. डिफरेंस इन मास अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू G. डिफरेंस इन मास अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू G. बराबर है क्या? इसका शॉर्टकट मैंने क्या बनाया? शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया. एक्सेलरेशन विल बी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? M1G. व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स? M2G. अपॉन टोटल मास इज M1 plus M2. बराबर है क्या? अरे नेट पुलिंग फोर्स ही तो हुआ यार, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यार. तो सर वही चीज तो है, हमको पागल बना रहे हो क्या? है इजी तो है. फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास. गेटिंग इट? कोई ट्रिक ब्रिक नहीं है यार, ये उधर से ही आया. हर ट्रिक तो डेरिवेशन उधर से ही आता है. अब यहाँ पर दूसरा चीज हमको निकालने का है टेंशन. ये होगा टेंशन. टेंशन टेंशन टेंशन. कैन आई से रस्सी सेम टेंशन सेम? हाँ. Yes.
रस्सी मासलेस, टेंशन सेम हर जगह पर, एन एक्सटेंसिबल मासलेस, टेंशन सेम। Yes. अब टेंशन निकालने के लिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। एंड में हमको रिजल्ट याद रखने का सीधा, मैं सब डेरिवेशन क्यों कर रहा हूँ, रिजल्ट याद रखने के लिए। तो डेरिवेशन करेंगे ना तो दिमाग पे एक छाप छोड़ता है वो, हाँ ये कुछ किया था, कुछ मेहनत तो किया था हम लोगों ने, चलो याद करते हो। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yeah. बट डायरेक्टली इफ आई डू Yes, शॉर्टकट sir. ना, तो वो उसमें मेहनत करना पड़ेगा शॉर्टकट को याद करने के लिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो M1 का। M1 को नीचे कौन खींच रहा है? M1. M1 जी। ऊपर कौन है? T है, ये नीचे जा रहा है, बराबर क्या? कैन आई अप्लाई एफ नेट इज MA, बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज MA। Yes. हु इज द बड़ो फोर्स? M1. M1 जी माइनस T is mass into its acceleration। अरे यार बोलो, Yes, sir. Yes. एक्सेलरेशन सही है क्या? सही है क्या? हाँ अच्छा, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं M2 का, तो ऊपर कौन है? T है, नीचे कौन है? M2G है, ये ऊपर जा रहा है। अब मेरे को बोलो F नेट इज MA, बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज MA लगाओ, बोलो। T minus M2G equals to M2A. M2A बोलो, यस और नो? बोलो Yeah. भाई। Yes. Can I do one thing? Can I multiply this by M2 and can I multiply this by M1? चलेगा क्या? तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? M1 M2G minus M2T is M1 M2A। और ये इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? M1A M1T सॉरी M1T minus M1 M2G is equal to M1 M2A। Yes. बोलो, कैन आई सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन? सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है क्या? Yes. हाँ कैन आई से ये वाला टर्म उड़ गया, हाँ। ये आया 2M1 M2G। ओके, यस और नो? माइनस M1 प्लस M2 इंटू T इज इक्वल टू 0। तो T का वैल्यू कितना आया? 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। इसको रट्टा मारो, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये दोनों चीज आपको रट्टा होना चाहिए एटवर्ड्स मशीन में। डेरिवेशन करने का मुझे तो आता था, आप डेराइव करते बैठेगे तो टाइप पेपर खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? दो एक्सेलरेशन याद रखो, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। टेंशन कितना रहेगा एटवर्ड्स मशीन में? 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। बोलो। Yes, sir. इसका ट्रिक क्या है? टेंशन ढूंढने का एक बहुत अच्छा ट्रिक ढूंढा है मैंने। टेंशन विल बी फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। देखो अप्लाई करके देखता है। काशिका, फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है? फॉरवर्ड फोर्स M2G। M1G यार, भारी है ना वो फॉरवर्ड M1G। फोर्स। अच्छा आपने हाँ फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। बैकवर्ड मास कौन सा है? बैकवर्ड मास M2 प्लस बैकवर्ड फोर्स कौन सा है? बैकवर्ड फोर्स M2G M2G इनटू फॉरवर्ड मास M1 अपॉन टोटल मास। M1. ये देखो, इसको ऐड करो, कितना होएगा? बोलो। हाँ Yes. अरे समझा क्या? ये सब ट्रिक्स बहुत काम की चीज है, ये सब कौन करते बैठेगा डेरिवेशन? तो दो शॉर्टकट्स मैं आपको दे देता हूं, एटवुड्स मशीन के दो शॉर्टकट्स। व्हेनेवर एटवुड्स मशीन के सम कम्स, क्या करने का? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन Total. टोटल मास। इसको रट्टा मारने का, M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फॉरवर्ड फोर्स इनटू
backward mass plus backward force into forward mass working upon total जब mass. प्लस है फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास mass प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू forward mass फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। इसका शॉर्टकट क्या है? डायरेक्टली रट्टा मारो 2m1 m2g अपॉन m1 plus m2 M1 plus M. इसका एक सेल्फ नोट्स बना के तैयार कर लो, ठीक है। एटवुड्स मशीन क्या होता है मालूम है ना? ये Yes. नीचे जा रहा है, ये भारी है ये हल्का है, दैट मींस m1 इज ग्रेटर देन m2। बोलो ट्रिक फॉर एटवुड्स मशीन। So can you please move back to please? हाँ आई एम गोइंग, ये इंपॉर्टेंट है यार, गो बैक वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही है। ये इंपॉर्टेंट, ये कॉपी कर लिया। Yes. so the forward force m1g होगा ना? m1g होगा ना, भारी वाला, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। ये मैं रब करूँ पूरा, Sir, Yes. ये कुछ काम, हाँ ये F net is equals to MA के बाद आपने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया बेटा, इसको याद नहीं रखना। ओके आप सीधा रिजल्ट याद रखो। ओके इसमें दिमाग खराब करना ही नहीं है हमको। ओके जनरली आई एम प्रूविंग इट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, कि आपको मुझ पे भरोसा हो जाए कि भाई हाँ ठीक है सर कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमेशा शॉर्टकट नहीं बताते। गेटिंग? ये कोई एग्जाम में थोड़ी करना है यार, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में करेंगे? हाँ एक मिनट है उसमें क्या करेंगे यार। आई एम रेजिंग दिस थिंग, हाँ इज इट ओके? Yes. चलो अभी क्वेश्चन में क्या ढूंढने का? चलो इन अरेंजमेंट शोन द मास विल असेंड डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। ओके ये मास दिया है, ये लॉन्ग है। चलो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? भारी मास माइनस हल्का मास इनटू जी अपॉन टोटल मास। सही है क्या? M1 plus दोनों में से भारी मास कौन सा है? 3/2. 3/2. 3/2m माइनस दूसरा वाला m है इनटू जी अपॉन टोटल मास कितना है? अरे आर यू देयर विद मी और नॉट मैन? Yes. Yes. ये कितना होगा? 3/2m माइनस m कितना होता है? हाफ m। बोलो। हाँ सर। ये कितना हो गया? g/5 हो गया आंसर। चलो खत्म, आगे बढ़ो। गेटिंग इट? yes sir। जब भी एटवुड्स मशीन दिखे तो वो बत्ती जल जाना चाहिए। हाँ m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करने का। गेटिंग इट नाउ? Yes. क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल कर दो, वो कॉन्सेप्ट ही पोर्शन में नहीं है, छोड़ दो। वो एक्चुअली जे लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये आज ही सिखाना है आप लोग को, वो है नहीं। ओके पुली मूव कर रहा है। स्टिक टू योर पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीमलाइन जितना करेंगे ना पोर्शन को, उतना ज्यादा पढ़ने में आसानी रहेगी। अभी तो पढ़ लेगी, एक साल बाद नहीं पढ़ पाएगी। जितना स्ट्रीमलाइन रहेगा ना आपका पोर्शन, जैसे बायो में कैसा एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी मतलब पूरा दिन रट्टा मारो, वैसे ये बीसी पांडे इज योर बाइबल, पूरा दिन रट्टा मारो। इसमें जो जो कैंसिल है वो कैंसिल कर दो, बाकी ये बुक में स्टिक करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है। लुक केयरफुली व्हाट इज इट टेलिंग यू। ओके क्वेश्चन नंबर 10, अभी एटवुड्स मशीन नहीं है, एटवुड्स मशीन के नीचे और एक मास लगा दिया है, बराबर है क्या? Yes. 3 इक्वल वेट्स ए बी एंड सी ऑफ 2 kg ईच, मतलब ये 2 kg है, ये भी 2 kg है और ये भी 2 kg है। सही है क्या? हेलो? द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन बी एंड सी, मतलब ये टेंशन मांगता है। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? हमेशा क्या ढूंढने का रहता है? Acceleration. एक्सेलरेशन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कहना से ये नीचे कितना खींचेगा? B plus C. नहीं भाई, ये खाली सी वाला कितना खींचेगा? mg। 20. mg कितना होता है? 20। ये कितना खींचेगा? 20। ये कितना खींचेगा? 20. 20. 20। आर यू देयर?
हेलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बराबर। नेट पुलिंग फोर्स एक साइड पे कितना है? 40 है। अरे भाई एक साइड पे 40 है, ये साइड पे 40 है कि नहीं? 40 minus 20. 40 ये साइड पे माइनस फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स भी कर सकते हो ना। Yes. अपॉन टोटल मास कितना हो गया? बोलो। 6. तो 20/6 हुआ, दैट इज 10/3। 3.33. Yes. यानी कि ये 3.33 से ऊपर जा रहा है, और यही चीज 3.33 से क्या आएगी? नीचे. नीचे जाएगी। बोलो। हाँ। अरे यस और नो है? Yeah. Yes. यस सर। अच्छा, फ्री बॉडी टी किसको कनेक्टेड है बेटा? टी किसको कनेक्टेड है? सी वाले को। हाँ। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ सी का। सी वाला कितना केजी है बेटा? 2 kg। नीचे कौन खींच रहा है? 20 न्यूटन। ऊपर कौन है? टी. टी। और ये नीचे जा रहा है ए से। बोलो। Yeah. Yes. Sir. Can I apply F net is ma? भारी फोर्स माइनस हल्का फोर्स इज ma. Who is the भारी फोर्स? 20 Newton. 20 माइनस टी ऊपर इस m कितना है इसका? 2। a कितना है ढूंढा मैंने? 3.3. 3.33 बराबर। क्या Yes. कितना होगा t का वैल्यू? 20 माइनस 13. 6.66। यस और नो? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 30. हो गया आंसर। गेटिंग इट? Yeah, sir. लास्ट 12th क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट विद द 14th वन। 12th क्वेश्चन करते हैं, आपको 12 तक खत्म करके आना, ठीक है ना? जैसे ये सम्स कर, कैंसिल 11th वाला इंपॉर्टेंट है यार। 11th वाला भी इंपॉर्टेंट। चलो ये 11th वाला कर लेते हैं, 12th वाले से चालू करेंगे, ठीक है ना? या 12th वाला आप लोग होमवर्क करना, इजी है 12th वाला, ठीक है? 11th वाला मैं सिखा देता हूँ। लाइट स्ट्रिंग गोइंग ऑन अ क्लैंप पुली सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास है। मेरी बात सुनना, ये पुली है जिसका मास m है ना? तो पुली का भी वजन इधर ऐड करेगा कि नहीं mg? Yes. Sir. और यहाँ से एक वजन लग रहा है किसका? बड़ा m का, बराबर। क्या हेलो, ये रस्सी ऐसे जा रही है, बराबर है क्या? Yes. Sir. और ये क्लैंपिंग दिया हुआ, मेकिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मजा आएगा, मेरी बात सुनना, इधर ध्यान दो। एंड दे आर टेलिंग यू दैट इट इज एट रेस्ट। ये सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है। मतलब कहना चाहिए ये नीचे कितना खींचेगा? mg. बड़ो mg। कहना चाहिए रस्सी में टेंशन आएगा इधर की? Yes. या कोई बता सकता है क्या ये मूव कर रहा है सिस्टम? नहीं. No. नहीं। दैट मींस टी विल बिकम इक्वल टू बड़ो mg। Yes. अरे मेरा बच्चा mg. एफ नेट 0 है ना? एफ नेट 0 है, एफ नेट ma नहीं है, तो दैट मींस टी ऊपर इज इक्वल टू mg नीचे। या बोलो। Yeah, sir. अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का। अब आते हैं पुली की तरफ। पुली 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 सर, पुली। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो पुली का वजन नीचे छोटो mg, पुली की दोनों तरफ रस्सी है, रस्सी में दोनों तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। हाँ. यानी इसे इधर भी टेंशन बनेगा और इधर भी टेंशन बनेगा, सबको मालूम है? Yes. यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. Yes. Sir. अरे भाई बोलो, हाँ ना बोलो यार। हाँ हाँ Yes. हाँ. अच्छा, Sir. टी का वैल्यू कितना आया था मेरे को? mg. mg. बड़ो mg। mg. सही क्या? हाँ. Yes.
तो कहना इसे पुली का और फ्री बॉडी डायग्राम और थोड़ा अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बना दो तो टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द पुली कितना है? 2 mg. अरे नहीं यार, ये बड़ो है छोटो है, यस और नो? Yes. और यहाँ से कितना लग रहा है? बड़ो mg. Can I say they are how much angle with each other? 100. Can I say net force कितना बनेगा? Root 2m. 2 mg. नहीं यार, रूट 2m कैसे आएगा? क्या बात कर रहे हो? रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर ना। सॉरी, अरे ये F1 होता है और ये F2 होता है तो नेट क्या बनता है? रूट ऑफ F1 स्क्वायर एंड F2 स्क्वायर ना। Are you understanding what am I speaking? Yes, sir. Getting it? Yeah. Can I say G square कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो? बोलो। Can I say ये Yes. नेट फोर्स इधर लगा रहा है? On whom? On the clamp. So can I say clamp भी equal and opposite force देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. हेलो, अरे भाई ये दोनों मिलाकर ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं क्लैम्प, इधर जाओ, ये एफ नेट है। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन, और ये रिएक्शन पूछा है आपको। तो जितना फोर्स ये पुली प्लस द मासेस लगा रहे हैं क्लैम्प के ऊपर, क्लैम्प उतना ही फोर्स लगाएगा। हाँ, गॉट इट? तो ये आंसर हुआ कि नहीं डी? Yes. एक सम को चुन चुन के प्रैक्टिस करो भाई। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? Yeah. पहले हम आए ये मास की तरफ, कहना से ये मास रेस्ट पर था, तो हमने क्या बोला, यहाँ का T विल बिकम इक्वल टू mg. बड़ो mg, बराबर क्या? फिर हम आए पुली की तरफ, पुली का इधर भी टेंशन है, तो ये भी mg हो गया, ये भी mg हो गया, और उसका खुद का वजन कितना रहेगा? छोटा छोटो mg। कहना से नेट फोर्स इधर कितना बना? mg, और नेट फोर्स इधर क्या बना? G बड़ो m plus अब ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ने आता है ना पैरेललोग्राम लॉ से। तो जितना ये पुली लगाएगा उतना क्लैम्प भी लगाएगा रिएक्शन। यस और नो? Yes. व्हाट डज इट डू? हार्ड वर्ड। अभी यार फोर्सेस को बैलेंस करो अपने आप। We'll continue from the 12th question till 20. I need to do a lot of questions in this thing so that you all can get an idea, and then we can start with friction. So maybe one lecture on Friday को, and then Monday तक friction खत्म हो जाएगा, and then taking it together में approximately there are 60 questions. तो दो 20 करेंगे तो दो एक दिन में, तो 3 और 1 4 और 1 5 लेक्चर और चाहिए। तो अपने पास 8-10 लेक्चर का टाइम है वेकेशन तक, बराबर है? Yes. 5 लेक्चर और 1 डाउट सॉल्विंग, तो 6 लेक्चर मैक्सिमम। गेटिंग इट और नॉट? हाँ सर। Yes. ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you. Bye, sir. Thank you.